All right, I'll explain all the personality disorders, basically entire module 6 as fast as I can. Brief में एकदम मतलब. So, firstly, paranoid personality disorder, there's distrust and suspicion of others. You think that others are malevolent and evil. You suspect others without enough basis, right? तो या लाइक अगर मैं स्टारबक्स में बैठा हूँ और मेरा दोस्त दोनों लोग लाइक दो कॉफीज ले आ रहा है, उसने बस रैंडमली मुझे एक कप दिया और अपने आप के लिए एक कप लिया, लेकिन मैं सस्पेक्ट करूंगा कि उसने अपने लिए वो कप लिया है जिसमें ज्यादा कॉफी है, ऐसे ही लाइक विदाउट एनी बेसिस. And you keep doubting your friends, and you keep doubting their loyalty. You don't confide in people even if because you think that your information will be used against yourself, so that's why you won't confide in people at all. If somebody asks you, you'll be like very rude and you'll respond like, it's none of your business. Then yeah, you read hidden negative meaning in all things. मतलब किसी ने तुम्हारे लिए छोटा सा कुछ अच्छा काम भी किया, उसमें you'll read a hidden negative meaning. Grudges रखोगे constantly. You feel hurt and take normal stuff very personally. तो मतलब किसी भी चीज में कुछ भी पर्सनल निकाल दोगे. कॉरिडोर में चल रहे हो, कुछ लोग रैंडमली हंस रहे हैं, तुम बोलोगे मेरे ऊपर हंस रहे हैं. Then you will suspect that your spouse is cheating. In that sense, बहुत insecurity slash jealousy होगी. So you'll suspect sudden attack without any reason. You'll think कि लोग मुझे मारेंगे, लोग मुझे गाली देने आएंगे बिना वजह. You'll feel deeply hurt by people. You'll scrutinize your friends for any hostility. So you'll like keep on analyzing your friends' behaviors to see कि मतलब वो कुछ घपाघप कर रहे हैं कि नहीं तुम्हारे साथ. You fall into disbelief upon seeing loyalty and think, तो मतलब लाइक जब भी कोई जरा सा भी लॉयल्टी दिखाता है, वफादारी दिखाता है तुम्हारी तरफ, देन यू लाइक क्या इसने वफादारी दिखाई. एंड देन यू विल बी थिंकिंग कि नहीं, इसके नीचे कुछ और स्कीम होगा, अंडरलाइन नहीं हो सकता है इतना. बिलीव नहीं करोगे तुम उसको. बेसिकली कैजुअल जोक को कैरेक्टर का अटैक समझ लोगे. फुल ग्रज, नो फॉरगिवनेस. यू आर ऑलवेज jealous and suspicious of partner. You gather like weird evidence. लाइक अगर अगर मैं मुंबई में रहता हूँ और फ्लड हो गया, फ्लड की वजह से मेरी वाइफ जो है, अगर वो अपने वर्क में फंस गई, तो मैं कहूंगा नहीं नहीं, फ्लड तो मतलब तुम्हारे जिस्म में हो रहा था, तुम चीट कर रहे थे, तुम फ्लड में नहीं फंसे हुए थे. वैसे कह दूंगा मैं, विच इज लाइक नॉट ट्रू, बिकॉज इतना फ्लड था कि उसको ऑफिस में रहना पड़ा था. एनीवे, they're hyper vigilant, keep their guard up, and they are cold and distant. इसीलिए काफी बार जो है, they could be seen, I mean they could be misdiagnosed or wrongly diagnosed to have schizoid, because they are cold and distant from people. But actually वो उनको schizoid नहीं है, schizoid personality नहीं है, paranoid है. Because yeah, distant because they keep their guard up, like I said. Yeah, self-fulfilling prophecy. If they are distant and they don't trust others, even others don't trust them, तो फिर इसीलिए वो prophecy हो जाता है self-fulfilling. And they always want to be as self-sufficient and as autonomous as possible. एकदम आत्मनिर्भर रहना चाहते हैं ये लोग, दूसरों पे डिपेंड नहीं करना चाहते हैं, because ये दूसरों पे शक करते रहते हैं. नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स ऑफ अदर्स, दे आर समटाइम्स रेसिस्ट. तो जो भी सोसाइटल स्टीरियोटाइप्स है ना, कि मतलब अफ्रीकन अमेरिकन ज्यादातर क्रिमिनल्स होते हैं, ज्यादातर वो चोरी वोरी करते हैं, या मतलब यू नो ये लोग ऐसे होते हैं, वो लोग वैसे होते हैं, तो वो वैसे स्टीरियोटिपिकल काफी होते हैं, बिकॉज दैट स्टीरियोटाइप बेसिकली फर्दर सपोर्ट्स, basically anything that supports their suspicion, they adopt that, and stereotypes support their suspicion, so they adopt it. Okay. Now they have risk of MDD, major depressive disorder, agoraphobia, OCD. तो OCD for example, शक करेंगे लोगों पे, I am being bugged, I am being spied on, तो वो हमेशा अपने साथ एक कैमरा रखेंगे to photograph things, keep checking here and there कि भाई कोई माइक या कैमरा तो नहीं रखा कहीं किसी ने. तो वैसे OCD हो सकता है. Agoraphobia मतलब afraid of a lot of things, afraid of society, afraid of people. तो yeah, you know कोमॉर्बिड हो सकता है इनके साथ, स्किज़ोटिपल, स्किज़ॉइड, नार्सिसिस्टिक, अवॉइडेंट एंड बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स. इन लड़कों में थोड़ा ज्यादा होता है, लड़कियों से. एंड चाइल्डहुड या टीनेज से मतलब शुरू होता है ये. एंड इसके जेनेटिक कॉजेस भी हैं. ओके. सो डिफरेंशियल डायग्नोसिस इसके हो सकते हैं. बेसिकली डिफरेंशियल डायग्नोसिस ये होता है कि अगर तुमने अगर गलती से डायग्नोज कर दिया किसी को एक डिसऑर्डर से, जो कि वो डिसऑर्डर नहीं है. तो अगर किसी को डिल्यूजनल या स्किज़ोफ्रेनिया या मूड डिसऑर्डर है, मैंने गलती से उसको ये समझ लिया, पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर समझ लिया, तो दैट इज डिफरेंशियल डायग्नोसिस. तो वो क्या क्या गलती हो सकती है, दैट्स व्हाट दिस इज ऑल अबाउट. तो डिल्यूजनल, स्किज़ोफ्रेनिया, मूड डिसऑर्डर्स. So persistent psychotic thinking is there, delusions and hallucinations are there, and delusional and schizophrenia. तो
वो डिल्यूजन ही तो है ना एक तरह से पैरानॉइड की एवरीबॉडी इज आफ्टर मी एंड नोबडी इज ट्रस्टवर्दी, वो डिल्यूजन है तो इसीलिए कंफ्यूजन हो जाता है. सो या इट इज नॉट बायोलॉजिकल और ड्यू टू सब्सटेंस यूज. हाँ मतलब जो भी ये सिम्टम्स है पैरानॉइड के, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ एनी ब्रेन का मिसफंक्शन या एनी ड्रग. इट इज लाइक अ थिंकिंग ऑफ योर्स. स्किज़ोइड एंड स्किज़ोटाइपल एंड हिस्ट्रियोनिक के लिए भी वो किया जा सकता है. So histrionic may basically relationships keep on changing. You don't stick to one relationship for too long, तो इसीलिए histrionic का I guess वो common है. Avoidant personality disorder है, so as avoidant personality disorder are also cold and distant, and you can diagnose paranoid personality when its traits are inflexible. So like only if the traits are inflexible, you have to diagnose with PPD. This goes for all disorders actually. The traits have to be consistent and inflexible in order for you to diagnose that disorder. And एक बहुत सिंपल ट्रिक है डिफरेंशियल का. if ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, मतलब इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस बताओ, तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है. जस्ट think of what all other disorders have any criteria in common with the disorder in question. Whichever disorders have 2-3 criteria or more than that in common with the current disorder, उनका differential हो सकता है, because you can like गलती से diagnose with that. तो बस वो explain कर दो differential में, even if like ये सब narrowed हो जो मैंने red में लिखा है. Okay, schizotypal. So social interpersonal deficits, no close relationships, cognitive perceptions के distortions होते हैं, your eccentric behavior. This starts from early adulthood and 5 or more things are there. So these are ideas of reference, not delusion of reference, idea of reference. Delusion of reference is जब तुम्हारा एकदम पक्का बिलीफ होता है कि ऐसा ही है, सब लोग मेरे बारे में ही सोचते हैं, सब लोग मेरे पीछे ही पड़े हैं, मेरे बारे में बात चल रही है. बट आइडियाज ऑफ रेफरेंस इज जस्ट एक परसेप्शन है जो हमेशा नहीं रहता है, इतना श्योर कन्विक्शन नहीं रहता है. जस्ट ए परसेप्शन, दे थिंक कि शायद से मतलब मेरे बारे में बात हो रही है. So there's a difference. Delusion is though even more strong. Odd magical beliefs, superstitious, clairvoyance, telepathy, sixth sense. तो जैसे कि मैं कहूँगा कि मेरा कुत्ता मतलब अगर 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 मेरी गर्लफ्रेंड मेरे डॉग को वॉक पे ले जा रही है, तो फिर मैं कहूँगा कि वो वॉक पे इसीलिए ले जा रही है क्योंकि 1 घंटा पहले मैंने सोचा था कि वो उसको वॉक पे ले जाना है, तो मेरे सोचने की वजह से ऐसे हुआ है, मेरे सोच से वो इन्फ्लुएंस हुई है. तो ऐसा टाइप का कुछ टेलीपैथी है या क्लेयरवॉयंस है. या सुपरस्टिशन ऐसा होगा दैट in order to avoid something from happening, I have to walk past the same spot 3 times, specifically 3 times or something like that. ऐसे rituals follow करेगा कोई जिसको है मतलब schizoid. फिर unusual perception and body illusions. तो मतलब या मेरे बॉडी में अजीब सा कुछ कुछ हो रहा है ऐसा तुम्हें लगेगा. एंड या unusual perception would be like you can final destination देखा है ना, छोड़ो, I'll actually come to that later, I'll explain this later. Yeah, anyway, odd speech and odd thoughts, vague stereotypes, too much information elaborate करते हैं, metaphorically बोलते हैं. तो these people are either too vague, मतलब या तो कुछ भी समझ नहीं आता इनमें से, या ये कुछ ज्यादा ही डिटेल में जाते हैं छोटी छोटी बातों पे. एंड या दे आर सस्पिशियस ऑफ अदर. पैरानॉइड आइडिएशन है, अगेन डिल्यूजन नहीं है, आइडिएशन है खाली. बट हाँ वही, तो ये भी एक चीज है. इनअप्रोप्रिएट फीलिंग एंड ऑल्सो कंस्ट्रिक्टेड फीलिंग, मतलब दे आर वेरी अपटाइट, दे विल टॉक लाइक अ रोबोट, दे विल नॉट टॉक फ्रीली, दे नॉट लेट देयर इमोशंस कम आउट. तो बहुत कंस्ट्रिक्टेड से रहते हैं, अकड़े हुए से रहते हैं इन सोशल इंटरेक्शंस. एंड या इनअप्रोप्रिएट फीलिंग लाइक आई डोंट नो, मैयत पे जाके हंसना और समथिंग. ओके, तो ऑड एंड पेक्यूलियर अपीयरेंस, ढंग से पहनते नहीं है कपड़े अपने, लेकिन सोचते नहीं है ज्यादा कि मैं कैसा लग रहा हूँ. There are no friends other than close के रिश्तेदार, other than family they don't have friends. They're very social. There's a lot of social anxiety in them, and yeah, there is paranoia also जैसे लिखा. Even with भरोसे वाले they are very this thing. So yeah, okay. गलत interpretation of casual events to have personal meaning. Again वही delusion नहीं है, as I said, with more conviction. वही preoccupied with paranormal things, they think that they can predict future and have control over others. तो जैसे फाइनल डेस्टिनेशन में इस बंदे के साथ होता है, वैसे मूवी में तो ये सच्ची प्रेडिक्ट करता है, बट इनको हमेशा वैसा वाला वाइब आता है कि मतलब ये प्लेन क्रैश होगा या ये होगा, ऐसे होने वाला है करके वो सोचते हैं. तो पैरानॉर्मल थिंग. सुपरस्टिशन, या वही walk past the same object thrice to avoid any bad stuff that could happen. They will repeat old and unique phrasing. They're very vague, very like unique and vague. मतलब फॉर एग्जाम्पल ये बोलेंगे आई वॉज टॉकेबल. टॉकेबल कोई वर्ड नहीं होता है, बट वो ऐसे ही बना के बोल देंगे. इनका एक यूनिक सा टॉकिंग स्टाइल होता है वैसे. देर आइदर टू स्पेसिफिक और टू एब्स्ट्रैक्ट, वो मैंने पहले बता दिया था. यू नो
दे आर स्टिफ इन इंटरेक्शंस एंड ऑड इन क्लोथिंग। तो ये पीके का एग्जांपल आता है। पीके जब अर्थ में लैंड करता है इन द मूवी, ही इज वेरी स्टिफ, ही डज नॉट टॉक विद पीपल मच, ही जस्ट लुक्स एट देम। तो वैसा एक स्टिफनेस है एंड ऑड क्लोथिंग। तो पीके का भी ऑड क्लोथिंग है। तो आई गेस दिस काइंड ऑफ रिमाइंड्स मी ऑफ पीके। तो मैंने पीके डाल दिया यहाँ पे, आमिर खान। तो यू मे वांट मोर रिलेशनशिप्स, मतलब वो पूछोगे उससे तो फिर वो कहेगा हाँ आई वांट मोर रिलेशनशिप्स, बट उसका जो बिहेवियर देखोगे तो बिहेवियर से ऐसा लगेगा एज इफ ही एक्चुअली डज नॉट वांट रिलेशनशिप्स, क्योंकि उसका बिहेवियर वैसा ऊट पटांग सा है। दे डोंट फिट इन एंड दे हैव सोशल एंजाइटी। तो दे थिंक, मतलब उनको लगता है कि आई डोंट फिट इन अमंग्स दीस पीपल, आई एम इंफीरियर। वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स सा है, सोशल एंजाइटी भी है। दे सीक ट्रीटमेंट फॉर एंजाइटी इंस्टेड ऑफ एसपीडी। तो मतलब इंस्टेड ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आई मीन। तो या इनको इनको लगता है कि मुझे एंजाइटी है, सोशल एंजाइटी है, तो उसके लिए वो अप्रोच करते हैं, बट असल में उनका एंजाइटी नहीं, ये होता है स्किज़ॉइड होता है। ओके, sorry, schizotypal, not schizoid, schizotypal. 50% of them have at least one major depressive episode. So that is another one thing to note down. Um, Seen from, okay, this disorder is seen from childhood or teenage. As बच्चे they appear odd and abstract and they attract a lot of teasing. Like बच्चे बाकी बच्चे इनको बहुत चिढ़ाते हैं. So yeah, this course of this disorder is very stable and it occasionally turns into schizophrenia, but very occasionally. ज्यादातर नहीं होता, मतलब ज्यादातर केसेस में schizophrenia नहीं होता है, बस यही होता है, schizotypal होता है. This is little more in males than girls. तो guys watch out. Okay, comorbid with schizoid disorder, paranoid personality, avoidant personality, borderline personality. Differential में schizotypal, delusional. एक मिनट, schizotypal तो ये है anyway. या delusional and schizophrenia, इनके साथ वो हो सकता है, you know, मिस्टेक कर सकते हो तुम, बिकॉज डिल्यूजन इसमें भी है एंड स्किज़ोफ्रेनिया से सिमिलर है थोड़ा थोड़ा। बाइपोलर, मेजर डिप्रेसिव एंड साइकोटिक डिसऑर्डर्स के साथ जो है इट कुड बी मिस्टेकन। एंड कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सब्सटेंस अब्यूज, उससे भी मिस्टेक कर सकते हो इसको। Now coming to the slightly easier one, antisocial personality. तो इसमें disregard and violation of others' rights, others की बिल्कुल चिंता नहीं करते, and three or more of these should be there. So there's no conformity, there is unlawful behavior, they do things that warrant you to get arrested, breaking the law. सो या धोखेबाज होते हैं, एलियासेस लेते हैं, चीट करते हैं, स्कैम करते हैं, झूठ बोलते हैं अपने प्रॉफिट के लिए और अपने मजे के लिए। इम्पल्सिव एंड दे फेल टू प्लान अहेड। इरिटेबल एंड अग्रेसिव एंड बहुत गुस्सैल होते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड से होते हैं। रेकलेस डिसरिगार्ड फॉर अदर्स सेफ्टी, ड्राइविंग में रेकलेस डिसरिगार्ड, या गैम्बलिंग वगैरह में, या किसी को भी कैसे भी मार देंगे, कौन गल तो देखा ही है। irresponsible and they don't follow commitments. जॉब का कुछ रिक्वायरमेंट होता है, जॉब में कुछ कमिटमेंट्स होते हैं, नहीं कर पाते, जॉब चेंज होती रहती है। रिलेशनशिप के कमिटमेंट्स होते हैं, नहीं फुलफिल कर पाते, रिलेशनशिप चेंज करते रहते हैं। इनमें नहीं गिल्ट है, ना ही रिमॉर्स है। 18 प्लस होना जरूरी है, 18 के नीचे नहीं हो सकता है डिसऑर्डर। कंडक्ट डिसऑर्डर होना चाहिए बिफोर द एज ऑफ 15 ईयर्स इन ऑर्डर फॉर यू टू हैव एएसपीडी। अगर तुम्हें 15 साल की उम्र के पहले कंडक्ट डिसऑर्डर नहीं था तो तुम्हें एएसपीडी नहीं होगा। कंडक्ट डिसऑर्डर क्या है? बेसिकली एएसपीडी का जो है बच्चा है कंडक्ट डिसऑर्डर, इतना समझ लो। इसके ऊपर में नहीं जाना क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, भाड़ में जाए। ओके, नॉट ड्यूरिंग स्किज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर। हाँ, अगर स्किज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर के ड्यूरिंग के दौरान तुम्हें इसके सिम्टम्स आए तो वो एएसपीडी नहीं है, वो स्किज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर है। ओके, तो यू डू थिंग्स फॉर मनी, सेक्स, पावर, स्पर ऑफ द मोमेंट डिसीजन, बकवास रैशनलाइजेशंस देते हो तुम दूसरों को हर्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, you'll say stuff like losers always lose, life is unfair, survival of the fittest. ऐसे बहाने बनाओगे तुम for cheating others and for taking advantage of others. You blame victims for being foolish. अरे तू चूतिया था, मैंने कर दिया तो मैंने कर दिया ना, मतलब ऐसे बोलोगे ना। तो भाई ऑर्डिनरी वर्क इज beneath me, मैं महान हूँ, ऐसा टाइप का एक ग्रैंडियोसिटी है। एंड they're very opinionated, very cocky, they can be at times, and they don't sustain relationships. Like I said, they can't tolerate boredom. So yeah, Sherlock, like Benedict Cumberbatch from Sherlock, is a classic example of your ASPD, sociopath होता है ना। तो yeah, he cannot take boredom. When he was bored, he ended up shooting bullets at his wall, ऐसे ही मजे में, like literally taking a gun and shooting at the wall. That's kind of reckless behavior because he can't tolerate boredom. तो classic this thing. उसके memes तो हैं ही bored वाले। Okay, तो ये क्रॉनिक है, बट इसके सिम्टम्स जो है थोड़ा बहुत 40s, लेट 40s तक रिड्यूस होने लग जाते हैं। तो तुम थोड़े बहुत ठीक होने लग जाते हो, बट
पूरी तरह जाते नहीं है बिकॉज क्रॉनिक है। कॉमन दिस इज कॉमन अमंग्स फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स ऑफ पीपल। तो जिन महिलाओं को एएसपीडी है उनके रिलेटिव ज्यादा रिस्क में है देन जिन जिन मेल्स को एएसपीडी है। लाइक डायरेक्ट बायोलॉजिकल रिलेटिव्स को ज्यादा रिस्क है। अब इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस तो अगर सब्सटेंस यूज है तो एएसपीडी नहीं है अनलेस एएसपीडी वाज देयर बिफोर ड्रग यूज। So yeah, like if I was always antisocial even before using drugs, then I have ASPD. But if only during drug use I am being antisocial, then I don't have ASPD. ASPD during schizophrenia or bipolar is not ASPD, like I said before. And yeah, confusion बहुत हो सकता है between narcissistic and borderline with ASPD. Comorbid भी हो सकता है with NPD and BPD. Now coming to borderline personality disorder, this is very unstable. So unstable relationship, unstable self-image, unstable emotions. At least five or more of these symptoms have to be there. The symptoms are frantic effort to avoid abandonment. You could excluding suicide, however, because suicide is a different symptom altogether. The frantic effort to avoid abandonment hai. You may threaten to kill yourself, but not really want to kill yourself. Um, अनस्टेबल रिलेशनशिप, आइडलाइज पार्टनर और कंप्लीटली डिवैल्यू द पार्टनर। तो एकदम एक्सट्रीम्स में जाते हो, या तो पार्टनर मतलब महान है या पार्टनर दरिंदा है। तो ऐसे देखते हो तुम दुनिया को। एंड अनस्टेबल सेल्फ इमेज, तो यार इसका मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। इम्पल्सिव इन एटलीस्ट टू एरियाज, तो एटलीस्ट टू एरियाज में हैव टू बी इम्पल्सिव। इट कुड बी गैम्बलिंग, ईटिंग, स्पेंडिंग, सेक्स, ड्राइविंग। एंड द इम्पल्सिवनेस हैज टू बी पोटेंशियली सेल्फ डैमेजिंग। इट लाइक नॉर्मल इम्पल्सिविटी तो काफी लोगों में होती है, नॉर्मल एडोलेसेंस इम्पल्सिव होते हैं, बट द इम्पल्सिविटी हैज टू बी पोटेंशियली सेल्फ डैमेजिंग। बार बार सुसाइडल बिहेवियर एंड सेल्फ हार्म करते रहते हो या थ्रेटन करते हो। So yeah, and you're too reactive and very neurotic. Neuroticism का तो level ही अलग है मतलब। And unstable emotions, intense irritable anxiety which can last for hours, वो भी है। And yeah, they chronically feel empty, अधूरा लगता है मतलब। तो अधूरापन महसूस होता है, दे फील एम्प्टी। इनको बहुत गुस्सा आता है, गुस्से में इनको बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता है। ओके, एंड देयर डिसोसिएटिव, पैरानॉइड, आइडिएशन। एंड डिसोसिएशन भी होता है इनमें एक्चुअली, लाइक तुम्हारा जो डीपर्सनलाइजेशन है, डीरियलाइजेशन है, वो इनको भी थोड़ा थोड़ा होता है, बट नॉट इनफ टू क्वालिफाई एज डीपर्सनलाइजेशन डीरियलाइजेशन डिसऑर्डर। Okay, fear of abandonment, perceiving abandonment, causing self-harming. Wait a minute. Yeah, when you perceive abandonment, you cause you cause yourself self harm. And unavoidable change of plans causes anger. Angry when loved one is few minutes late or when therapy session ends। मतलब तुम थेरेपिस्ट के साथ बैठे हो, थेरेपिस्ट ने बोला ओके आर 1 hour इज ओवर, सेशन इज ओवर, तो हम गुस्से बहुत गुस्सा हो जाओगे या बहुत हर्ट फील करोगे। तुम्हारा अगर लव्ड वन बोल रहा है कि मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ बट 10 मिनट में पहुंचता है, उससे तुम पागल हो जाओगे। You demand to spend lots of time with the partner and ask for personal information very soon। मतलब दूसरी डेट पे ही गए और तुमने ये भी पूछ लिया कि तुम दिन में कितनी बार हिलाते हो, वैसा टाइप का। तो या तो सेल्फ लाइक वेरी अनस्टेबल सेल्फ इमेज। योर तो अनस्टेबल सेल्फ इमेज का मतलब क्या है? योर गोल्स, योर वैल्यूज, एस्पिरेशंस, ओपिनियंस, दीज विल कीप चेंजिंग। योर सेक्सुअल ओरिएंटेशन वुड आल्सो चेंज। मतलब आज मैं कहूंगा मुझे साइकोलॉजी पसंद है, कल मैं कहूंगा नहीं मुझे तो इंजीनियरिंग करना है, वैसा है। एंड या वैल्यूज विल चेंज। तो ये सब बेसिकली चेंज होता रहता है, लाइक स्टेबल नहीं रहता है। एंड कई बार वन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस इज, कई बार जो है इंसान को लगता है कि आई एम इविल, उसको लगता है दैट आई एम इविल। That is one part of it. So hurting self is definitely there, and it sometimes is done in order to end the dissociative experience। Like जैसे हमने देखा है depersonalization में you feel like you're outside your body ना, but when you like जैसे वो होता है ना कि मैं कहीं सपने में तो नहीं हूँ, and then you pinch yourself to prove that you feel the pain and that you're not in a dream and this is reality। तो वैसे ही वो जब dissociation feel होता है तो dissociation को हटाने के लिए वो खुद को harm करते हैं, खुद को दर्द देते हैं, so that they come back in their body and stop feeling depersonalized। Yeah, and they give themselves एक मिनट, yeah, and also they think that they're evil ना, तो इसीलिए they punish themselves for being quote unquote evil which they are not। तो उसके लिए भी सेल्फ हार्म होता है इनमें। दे अंडरमाइन सेल्फ जस्ट बिफोर गेटिंग अ गोल, तो मतलब थेरेपी थेरेपी के गोल्स फुलफिल होने ही वाले हैं, टर्मिनेट कर दिया। अच्छा खासा रिलेशनशिप चल रहा है जो बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है, टर्मिनेट कर दिया। एग्जाम में तुम सारे क्वेश्चंस ढंग से आंसर करने वाले हो बट एंड में तुमने आंसर करना छोड़ दिया। ऐसे बहुत करते हैं, खुद को अंडरमाइन करते हैं। ओके,
तो ये काफी क्रॉनिक इंस्टेबिलिटी है एडल्टहुड में. सुसाइड रिस्क इज मैक्सिमम इन यंग एडल्ट्स बट इट रिड्यूसेस विद एज. एंड थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आ जाती है 30s 40s तक. एंड सारे क्राइटेरिया तुम मीट नहीं करोगे एज यू एज ओल्डर एंड ओल्डर. बट 100% रिकवरी रेयर है बिकॉज ये क्रॉनिक है. एंड दिस इज 5 times more common in first degree biological relatives. तो या बच के रहना रे बाबा. बच के रह. Okay, more risk of there's more risk of antisocial personality disorder and substance use, bipolar and major depressive disorder. तो these are I guess kind of comorbidity slash differential, समझ लो differential. Okay, तो depressive disorder हो सकता है, bipolar हो सकता है, narcissism हो सकता है, ASPD भी हो सकता है. differential like गलती से तुम ASPD कर सकते हो because BPD वाले भी manipulate करते हैं, ASPD भी manipulate करते हैं, इसीलिए histrionic भी हो सकता है because histrionic is attention seeking and BPD is also attention seeking, very attached. Now BPD is different from other personality disorders due to the instability. सारे personality disorders जो भी covered हैं मॉड्यूल 6 में उनमें ये instability वाला aspect नहीं है जितना बाइपोलर जितना बॉर्डर लाइन में है. बॉर्डर लाइन में बहुत इंस्टेबिलिटी वाला एस्पेक्ट है. तो अनस्टेबल जहां भी है ना केस स्टडी में समझ लो कि बॉर्डर लाइन होने के ज्यादा चांसेस हैं ओवर अदर डिसऑर्डर्स. कोमॉर्बिड विद डिप्रेसिव बाइपोलर एंड अदर पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स. Okay, coming to histrionic, which is our second last disorder. Histrionic is basically excess. एक मिनट, let me just see recording हो रहा है कि नहीं. हो रहा है. Okay. Excessive emotionality and you seek attention from early adulthood in many contexts. So and इसके 5 or more होने चाहिए. You're uncomfortable when you're not the center of attention. हमेशा तुम्हें जो है मतलब बीच में रहना है, तुम्हें कृष्ण कन्हैया बनना है और सबको गोपियों की तरह तुम्हारे इर्द गिर्द नाचना है. एंड अगर वैसा नहीं है तो यू विल बी uncomfortable. Inappropriate, sexually seductive, provocative behavior towards others, जैसे बॉस की तरफ या थेरेपिस्ट की तरफ. You're rapidly shifting and shallow emotions which you don't elaborate on. You rapidly shift your emotions because you want more attention. Like अगर तुम पहले हंस रहे हो फिर अचानक से रो रहे हो तो obviously लोग तुम्हें attention देंगे, तो इसलिए your emotions will shift rapidly and they'll be very shallow. उसके पीछे कोई रीजन नहीं होगा. ऐसे ही छोटी छोटी बात पे पेन किसी का पेंसिल गिर गया तुम रोओगे, कोई ट्रिप करके गिर गया. हाँ, अगर कोई पत्थर के ऊपर ट्रिप करके गिर गया तुम रोओगे. एंड अगर किसी के साथ कोई छोटा सा चीज हो गया तो फिर तुम कुछ ज्यादा ही खुश हो जाओगे, एक्साइटेड हो जाओगे. Yeah, you use appearance to draw attention to yourself. Impressionistic speech, no details. तो इसका भी मैं बाद में समझाऊंगा. You dramatize and dramatize yourself, very theatrical, exaggerate yourself, right? And you are suggestible, easy to be influenced by people. Like लोग और हालात जो हैं जैसे जैसे बदलेंगे वैसे ही तुम भी बदलोगे. Whatever is the newest fad, you will go along with it. तो relationships are more intimate than they really are. मतलब you think that relationships are more intimate. तो दोस्ती बस 2 दिन पहले हुई है और वो ऑलरेडी BFF बन गया है, वैसा टाइप का. एंड इसके और हैं तो इनिशियल चार्म पीपल. so yeah, initially you can charm people with your enthusiasm, extroversion, flirtatiousness, openness. ये सब शुरू शुरू में people will find you to be a must londa or must londia. But as time passes they'll realize that you're very demanding, you demand attention, you make a scene if you do not get attention. you know um, इवन विद काउंसलर लाइक. हाँ, हिस्ट्रोनिक पर्सनालिटी वाले तो ये देख लेना ध्यान से. हिस्ट्रोनिक पर्सनालिटी वाले जब काउंसलर के साथ होते हैं काउंसलिंग या थेरेपी सेशंस में, तो वो रोज हर सेशन में हर हफ्ते नए नए सिम्टम्स बताएंगे ताकि उनको थेरेपिस्ट का अटेंशन मिले. हम बोलेंगे आज मुझे ये सिम्टम भी आ गया, वो सिम्टम भी आ गया. ये नॉर्मल डॉक्टर के साथ भी ऐसे करते हैं इन ऑर्डर टू गेट अटेंशन. एंड दे गिव बिग बिग गिफ्ट्स टू गेट मोर एंड मोर अटेंशन. एंड बाय द टाइम of the second session they are already on first name basis with the counselor. तो वो भी एक है. ये they spend too much time and too much money on grooming themselves to attract attention through their appearance. बहुत ही. and yeah, what I spoke about their dramatic क्या बोला था मैंने, shallowness जो है इनका, impressionistic speech and no details, वही जो shallowness है, that shallowness shows itself in this form that your opinions may be very strong. तुम बहुत ही dramatically बहुत ही strongly कोई political opinion या कोई भी opinion बोलोगे, but अगर क्वेश्चन करेगा कोई कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, why do you feel this way, तो फिर उसके तुम्हारे पास रीजंस नहीं होंगे, तुम बस बोलोगे हाँ बस है तो है, I just feel like this. तो काफी shallow है, surface में है, deep डेप्थ नहीं है, कोई डेप्थ नहीं है तुम्हें. So yeah, and histrionic वाले could embarrass their friends with excessive PDA. दोस्तों को बहुत ज्यादा झप्पी देना, या नॉर्मल बॉस वगैरह को झप्पी दे देना, या कुछ ज्यादा ही किसी मिसी करना. So yeah,
You cry over small things and you have big temper tantrums again to attract attention, dramatize, theatrical. You follow current fads and change yourself according to the new fads. So, and you manipulate the partner with seduction, but also by being super dependent on them. तो मैनिपुलेशन भी है बट डिपेंडेंस भी है अनलाइक योर एंटी सोशल जिसमें सिर्फ मैनिपुलेशन है और डिपेंडेंस नहीं है तो एक डिफरेंस देखो यहीं पे आ गया you get bored with usual routine and you get bored of long term relationship मतलब कोई भी long term चल रहा है तो you get bored of it and you want new relationships तो infidelity भी काफी होती है comorbidities में depression bipolar narcissism antisocial dependent personality disorder conversion disorder के साथ हो सकता है comorbidity um, differential diagnosis could be of borderline personality disorder because even in borderline personality disorder a person is attention seeking manipulative and has very volatile emotions खैर लेकिन बाइपोलर में ऐसा है कि इमोशंस में डेप्थ है लाइक बहुत ही वॉलेटाइल इमोशंस वॉलेटाइल मतलब बहुत ही जल्दी इमोशंस बदल जाते हैं वक्त बदल दिए जज्बात बदल दिए जो होता है ना वैसे हो जाता है इमोशंस के साथ बेसिकली तो दैट इज इन बीपीडी इसमें भी वैसा है लेकिन इमोशंस जो है उतने डीप नहीं है मतलब बहुत ही सरफेस सुपरफिशियल है Okay. Histrionic personality disorders are more exaggerated and yeah, more exaggerated emotions जबकि antisocial personality disorder में ज़्यादा exaggerated emotions नहीं होते ये एक difference है यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत differences लिखा है तो जो histrionic personality disorder वाले हैं वो manipulate करते हैं लोगों को in order to get attention जबकि antisocial वाले जो है manipulate करते हैं in order for profit and pleasure तो वो एक फर्क है and एंड जो तुम्हारे हिस्ट्रियोनिक वाले हैं they don't mind if they are seen as dependent or fragile in order to get attention whereas antisocial people do not want to be seen as that they want to be seen as superior and they want praise from people which is the same for narcissism. Okay, final disorder of module 6 npd narcissistic personality disorder. So there is a grandiosity you fantasize either you fantasize that you are mahan or you actually behave like you are mahan wo dono hota hai you need lot of tareef from people you don't have empathy and this starts from early adulthood so there are you need five or more of these to be true in order to have NPD. So grandiose, self-important, you exaggerate your achievements and you want to be seen as superior. You fantasize about unlimited success, power, brilliance. कल को मेरे पास बड़ी गाड़ी होगी, बड़ा घर होगा, blah 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 blah. Fantasize. You need too much तारीफ from people. वो भी है. And not that you want, you need. You literally need तारीफ. All right. Um, Right, and you think that you're special and unique, and you think that you can only be understood by high status people. मतलब मुझे तो मोदी जी के अलावा और कोई नहीं समझ सकता यार मैं इतना महान हूँ you know well हाँ जो भी है स्टीफन हॉकिंग ही मुझे समझ सकता है ऐसे बोल दोगे um, entitlement. So you think you have high expectations from people and you expect that तुम्हारी हर बात पे लोग नाचेंगे तुम जो भी कहोगे लोग करेंगे विदाउट एनी क्वेश्चन वो एंटाइटलमेंट है तुम्हें लगी एक्सपेक्टेशन है लोगों से कि मैं एक चीज कहूंगा मैं एक उंगली उठाऊंगा और पूरी दुनिया मेरे लिए घूमेगी वैसा that is entitlement and yeah you exploit people if you have NPD and there is no empathy you envy others and think of and you think that others also envy you ये arrogant haughty वैसा एक disposition है then you overestimate yourself and you're boastful and you're pretentious ये भी एक है and you think that others obviously praise you there are and your needs and tastes are like special and a cut above from others मतलब मुझे तो सिर्फ यम यम चाय का ना सुशी पसंद है मैं मोमोज नहीं खाता that type I guess so you are बहुत fragile self esteem होता है you need admiration like I said want extra dedication from people without caring about them ये भी एक है